sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @recipes123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, I'm back with another breakfast buffet video at Leela. It has now become kind of a series on my channel, and since you guys love these videos so much, I decided to do this again. In the Indian section, they had the option for pav bhaji, dalia upma, poha, rice idli, karam podi idli and sambar. In the accompaniments, they had the option for peanut chutney, tomato and garlic chutney, coconut chutney, podi masala and ghee. Hi guys, welcome back to my channel. Today I am at the Leela Ambience Convention Hotel and I'll be having the breakfast buffet at the Cafe Nosh, which is the multi-cuisine restaurant of this place. The first thing that I'm going to try from the Indian section is pav bhaji. Pav looks perfectly toasted and bhaji is so thick. Now let's give it a try. खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है by the way. Pav is really buttery and crispy और भाजी थोड़ी सी spicy है and I'm totally loving the spice because बहुत overly spicy नहीं है and I totally love the texture of vegetables in भाजी. भाजी में वेजिटेबल्स चंकी है जिससे आपको टेस्ट आता है वेजिटेबल्स का भी. ऐसा नहीं है कि खाली टमेटो मसाला आप टेस्ट करोगे. You can actually taste each vegetable. Like I can taste the cauliflower, green peas, potato. Now I'm gonna try the karam podi idli. Let's take the first bite of karam podi idli. So guys, karam podi idli is quite spicy. और इन्होंने बेसिकली इडली बैटर में पोड़ी मसाला मिला दिया. अलग अलग टाइप के पोड़ी मसाला होते हैं एंड वन ऑफ देम इज गरम पोड़ी, जिसे इन्होंने इडली बैटर में मिला दिया और फिर इडली बना दी. और उससे मैंने घी और पोड़ी मसाला भी डाल दिया था, विच आई थिंक वॉज टू मच. मैं लिटरली चोक कर गई पोड़ी मसाला पे. सो बी केयरफुल वाइल हैविंग द पोड़ी मसाला. ओवरऑल इट इज़ अ गुड डिश. और वहाँ पे प्लेन इडली भी है, सांबर भी था, चटनी भी थी. आप इसको उससे पेयर कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द पोहा विच लुक्स रियली गुड. हियर इज द पोहा. आई कैन सी सम पीनट्स, ग्रीन पीस. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ पोहा. इनके पोहे में एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि इसमें खाली अनियन नहीं है, ग्रीन पीस भी है और पीनट्स भी है, जिससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है पोहा में. एंड बिकॉज ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स इट इज़ मोर हाइड्रेटेड. यूजुअली पोहा वरना ड्राई हो जाता है. सो इट इज़ अ गुड पोहा. एंड इन्होंने इसमें कुछ अलग कर रखा है. इन्होंने इसे टेम्पर किया है क्यूमिन से और मस्टर्ड सीड से नहीं किया है. यूजुअली मस्टर्ड सीड होती है पोहा में. सो इट इज़ मोर लाइक अ नॉर्थ इंडियन पोहा. Now I'm going to try the dalia upma. Basically it's a उपमा मगर वो broken wheat से बना है. Here's the dalia upma. Just look at all these vegetables. Look so good. Let's take the first bite of dalia upma. इन्होंने पहले broken wheat को रोस्ट कर लिया और फिर उसका उपमा बनाया. This tastes really good और vegetables काफ़ी fresh है. Totally loving it. Again you can pair it with some sambar and chutney if you want to. मगर मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है. So yeah guys, this is all I've got for now. मैं इसे फिनिश करके आपको मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ.
In the bakery section, they had the option for butter croissant, pain au chocolat, marble cake, soft roll, hard roll, and a wide variety of sourdough breads. Hi guys, so now I'm gonna try the baked stuff and here I have two of my favorite things जो मैं हमेशा try करती हूँ and that is butter croissant and hard roll. इन्हें तो मैं कैसे ही मिस कर सकती थी. बटर croissant looks so good, crispy भी लग रहा है आज का तो. And this is the hard roll. This is an English bread and this one is the French one. यहाँ पे मैं दो अलग चीज़ें भी लाई हूँ जो मैं हर बारी try नहीं करती. Here's the crumble pastry and this is the almond muffin and this muffin is really soft. I'm going to pair all of this with the cappuccino coffee. You can also opt for the latte. Here's the coffee. शुगर मैंने ऐड कर ही लिया है. शुगर तो आप अपनी मर्जी से ही ऐड कर सकते हो. So now I'm going to take the first bite of butter croissant. मैं ना छोटा वाला पीस ले आई. वैसे मेरा बहुत मन था कि मैं बड़ा वाला ले आऊँ मगर मेरे को यहाँ पे काफ़ी कुछ ट्राई करना है वीडियो के लिए तो ये वाला काफ़ी रहेगा. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. दिस croissant is so perfect. It is crispy, buttery, flaky, airy and everything that a croissant should be. कितना crispy है. एक एक लेयर निकल कर आ रही है. And just look at that beautiful golden color. Now I'm going to take a sip of cappuccino coffee. Cheers to the coffee lovers. Coffee is really good. Now I'm gonna take another bite of butter croissant. तो गैस बटर croissant तो बहुत ही यमी था. यहाँ पे पान और chocolate भी था which is the chocolate croissant. वो मैं लाई नहीं because I had to try something different. So now I'm gonna taste the almond muffin. थोड़ा सा sticky है छूने में. मे बी इन्होंने इस पर शुगर सिरप भी डाला होगा. Anyways इसे खा के देखते हैं. ऊपर से आमंड के फ्लेक्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं. आमंड मफिन इज सुपर सॉफ्ट एंड सुपर मॉइस्ट. बहुत अच्छा लग रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये एगलेस है. यस गाइस यहाँ पे सारी बेक्ड आइटम्स एगलेस रखने लगे हैं अभी ये. एंड विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर वेजिटेरियंस लाइक मी. सो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू लाइक बेक्ड स्टफ यू मस्ट कम हियर. ये तो बहुत अच्छा था. इसको मैं बाद में फिनिश कर लूँगी. नाउ लेट्स ट्राई द क्रम्बल पेस्ट्री. बेसिकली इन्होंने बटर फ्लावर और शुगर से एक क्रम्बल बनाया और उसे पफ पेस्ट्री पे डाल के बेक कर दिया. एंड आई कैन ऑल्सो सी सम जैम ऑन इट. सो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई. वहाँ पे कस्टर्ड पफ्स भी थे मगर वो मैंने लास्ट बार ही ट्राई किया था तो मैं इस बार ही नहीं कर रही. ये मोर और लेस कस्टर्ड पफ जैसे ही है बस इसकी टॉपिंग अलग है और ये भी काफ़ी अच्छा स्नैक है. टोटली लविंग इट. नाउ आई एम गोना ट्राई द हार्ड रोल. वहाँ पे सॉफ्ट रोल भी थे जो यूजुअली सूप के साथ सर्व होते हैं बट आई प्रेफर द हार्ड वंस. दिस लुक्स सो गुड. दिस थिंग इज़ रियली गुड. टोटली लविंग इट. लास्ट बार जितनी अच्छी है ये. You can pair it with some butter if you want to, मगर ऐसे ही अच्छा लग रहा है. So now I'm gonna finish all this and meet you with something else. In the English breakfast section, they had the option for sausages, bacon, French toast, grilled tomatoes, and roasted potatoes. They also have a live counter for eggs, from where you can order omelette, fried eggs, sunny side up, and scrambled eggs as well. Here are some other Indian delicacies which I am super excited to try. Hi guys, I'm back with some more foods from the Indian section. और यहाँ पे काफ़ी कुछ है अलग ट्राई करने को. वैसे ना यहाँ पे वॉफल्स भी मिल रहे हैं लास्ट टाइम की तरह बट वो मैं ट्राई नहीं कर रही बिकॉज लिटरली सेम वीडियो बन जाएगा. सो या नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द फूड फ्रॉम द इंडियन सेक्शन. और इसमें ना रोस्टेड पटेटोज़ और ग्रिल्ड टमाटो भी मैं ले आई. वैसे वो इंडियन सेक्शन से नहीं है यार. मैंने सोचा अलग से प्लेट कौन गंदी करे. एंड आई एम इन अ बिट ऑफ हरी बिकॉज आई नीड टू लीव फॉर समवेयर और ज़्यादा टाइम नहीं है शूट करने के लिए बट आई रियली वॉन्टेड टू शूट समथिंग फॉर यू गाइज.
तो इसलिए मैं एक ही प्लेट में सब कुछ डाल कर ले आई हूँ, प्लीज़ डोंट जज। हेयर द मिक्स वेजिटेबल पराठा, पूरी, मसाला पुनगुल्लू, ग्रिल्ड टमेटो एंड दिस इज़ द रोस्टेड पटेटो विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। Anyways, never mind. This is the potato and green peas curry and I am going to pair this potato curry with the पूरी। और बाय द वे पराठा मैं तो मिक्स वेज लाई हूँ जो बना रखा था बफे काउंटर पे। वैसे आप ऑर्डर भी कर सकते हो, गोभी पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा एकदम गरम गरम बना के लाते हैं लाइव काउंटर से। वैसे मैंने लाइव काउंटर से उत्पम ऑर्डर किया है, उसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक मैंने इन्हें बोला है कि खाली ग्रीन चिली और टमाटो डालना, अगर आपको अनियन पसंद है आप डला लेना, या फिर मिक्स वेज उत्पम। और डोसा भी आप ऐसे ही ऑर्डर कर सकते हो। डोसा में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, मैसूर डोसा और मसाला डोसा, प्लेन डोसा, चीज़ मशरूम डोसा। So yeah guys, now let's begin. Here's the first bite of mixed veg paratha. Just look at that filling. मिक्स वेज पराठा में इन्होंने पनीर भर रखा है, गोभी भर रखी है, आलू है, बट मेनली आई कैन सी पनीर है इसमें। इस स्टफिंग में मेजरली आई कैन टेस्ट द पनीर और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ रहा है पनीर की वजह से एंड इट इज़ होल्डिंग द स्पाइसेस रियली वेल। इन्होंने इसमें ग्रेटेड कैबेज भी डाल रखा है जिसके मॉइस्चर से और सॉफ्टनेस मिलती है पराठा को। वहाँ पे दही और अचार भी रखा था, आप जिससे पेयर कर सकते हो इसे, या फिर अगर आप चाय पराठा कॉम्बो फैन हो तो आप चाय मंगा लेना। जिंजर टी लेके जाते हो टेबल पे गरम गरम, बहुत अच्छी होती है। अभी मेरी बहन पी भी रही है जिंजर टी। आई एम रियली लविंग दिस पराठा, बहुत अच्छा है। नाउ आई एम गोना ट्राई द मसाला पुनगुल्लू। पुनगुल्लू बेसिकली इडली बैटर से ही बनता है, बस इसे ये फ्राई कर देते हैं स्टीम करने की जगह। इसमें कुछ टेम्पटिंग भी होती है स्पाइसेस की, लाइक करी लीव्स, ब्लैक पेपर, और खा के देखते हैं कि और क्या क्या है। अनियंस भी है इसमें एंड आई रियली डोंट लाइक अनियंस ऐसे खाने में, सो दैट्स अ काइंड ऑफ पास फॉर मी। मगर अच्छा है, क्रिस्पी था, और अगर आपको अच्छा लगता है अनियन अपने खाने में आपको पसंद आएगा। आई एम गोना ट्राई द पूरी विथ सब्जी। अगेन यू कैन ऑर्डर द फ्रेश पूरी फ्रॉम द लाइव काउंटर, एकदम फूली भी आती है। तब ये थोड़ी पिचक गई बिकॉज मैं तो इनके बॉक्स से ले आई थी जो काउंटर पे था। ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने आलू भाजी में ग्रीन पीस भी डाली है बिकॉज कलर अच्छा हो जाता है सब्जी का, एंड आई रियली लाइक टू सी समथिंग ग्रीन इन माई फूड, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। पूरी में अजवाइन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है विच हेल्प्स इन डाइजेशन, और बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज मेरी मम्मी तो अजवाइन वाली पूरी बनाती ही रहती हैं। एंड इवन द पोटैटो करी इज़ रियली गुड, ग्रीन पीस परफेक्टली मर्शी हैं। आलू का टेक्सचर अभी पता नहीं कैसा है, आलू मैंने ट्राई नहीं किया। आलू ना अलग से ट्राई करती हूँ स्पून से बिकॉज पूरी से पकड़ने में दिक्कत हो रही है। इवन द आलू इज़ रियली गुड, परफेक्टली कुकड है, बिल्कुल भी मशी नहीं है और अंडरडन भी नहीं है, और स्पाइसेस अंदर तक जा चुके पोटैटो के। टोटली लविंग इट, दिस करी इज़ फैब। नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस फूड एंड मीट यू विथ समथिंग एल्स। आई वॉज गोना मीट यू विथ समथिंग एल्स, मगर मुझे याद आया कि मैंने रोस्टेड पोटैटो ट्राई नहीं किया। सो गाइज मैंने इसमें से रोस्टेड पोटैटो और ग्रिल्ड टमाटो ट्राई नहीं किया, और मैं करने ही वाली थी कि वेजिटेबल उत्पम आ गया। Actually, I'm calling it a vegetable utpam, but this is a tomato and green chili utpam. Just look at this. This looks so good और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। So guys, उत्पम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है and I cannot stop myself from eating that। मैं उससे पहले ना जल्दी से रोस्टेड पोटैटो ट्राई कर लेती हूँ बिकॉज फिर मेरे को ये नहीं लगेगा कि मैंने प्लेट अधूरी छोड़ दी। Here's the first bite। Even the roasted potatoes are perfectly cooked and they are perfectly salty। बेसिकली इन्होंने ब्लांच करा होगा पोटैटो को सॉल्ट वाटर में और फिर बेक कर दिया होगा ओवन में, और इसके ऊपर ऑरिगेनो इन्होंने डाल रखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उसका। यहाँ पे ना एग्स का लाइव काउंटर है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो फ्राइड एग, सनी साइड अप, स्क्रैम्बल्ड एग, ऑमलेट। ऑमलेट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं इन पे, लाइक चीज़ी ऑमलेट, सॉसेज ऑमलेट,
और मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं ऑमलेट वगैरह की बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। मैंने इंग्लिश सेक्शन में ही होता है ग्रिल टमेटो और रोस्टेड पटेटो, तो मैं वहाँ पे जब भी जाती हूँ तो देख लेती हूँ ऑमलेट के क्या ऑप्शन थे। तो यहाँ पे लाइफ काउंटर आप गरम गरम ऑर्डर कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ये डोसा मैंने अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर किया था, सो आई वॉन्ट बी ट्राइंग दिस। सो नाउ इट्स टाइम टू ट्राई द उत्पम। वैसे यहाँ पे डोसा भी है, आप मंगा सकते हो, बट आई वॉज रियली क्रेविंग फॉर सम गुड उत्पम। और साइज़ एकदम परफेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल बफे के हिसाब का है। लाइक बफे में काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी होती है तो छोटे पोर्शन अच्छे रहते हैं, सो इट्स अ डिसेंट पोर्शन। एंड इफ़ यू वांट मोर आप दोबारा ऑर्डर कर ही सकते हो, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हियर इज़ द फर्स्ट बाइट। इसको पेयर कर सकते हैं हम पीनट चटनी से, टमेटो चटनी से, एंड हियर इज़ द कोकोनट चटनी। आई एम गोइंग टू ट्राई द कोकोनट चटनी। यूजुअली कोकोनट चटनी इज़ नॉट माई फेवरेट, मगर इसमें ना ग्रीन चिलीज दिख रही है तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। फर्स्ट बाइट। दिस थिंग इज़ अ बिट स्पाइसी। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने ही बोला था ग्रीन चिली डालना, इन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी, मगर अच्छा लग रहा है। एंड इफ़ यू डोंट लाइक स्पाइसी फूड आप मना कर देना ग्रीन चिली के लिए। तो इट इज़ अ गुड उत्पम। फ्लफ़ी है, एयरी है, बाहर से क्रिस्पी है। टमेटोज और ग्रीन चिली इतने फाइनली चॉप्ड हैं कि हर एक कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ही अच्छा उत्पम है। मैं तो इनमें से क्या करूँगी, ग्रीन चिली हटा लूँगी और फिर खा लूँगी। एक बाइट ले लेते हैं पीनट चटनी के साथ भी। पीनट चटनी बहुत ज़्यादा जगह पर मिलती नहीं है, कहीं कहीं मिलती है। मैंने यूजुअली होटल्स में देखी है, एक ताज में देखी थी गुरुग्राम वाले में, और एक यहाँ देखी है। अनदर बाइट। उत्पम आए हुए ना थोड़ा टाइम हो गया तो उतना क्रंची रहा नहीं, मगर ग्रीन चिली से ना ऐसा लग रहा है एकदम करारा हो गया। So yeah guys, now I'm gonna finish this. A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in creating more such videos. They had a separate section for salad, fresh fruits and juices.